تصور کریں ایک ایسا میدان جہاں زندگی بچانے والے مسیحا خود خوف اور ہراس کے سائے میں کام کر رہے ہوں۔ وہ ہاتھ جو زخموں پر مرہم رکھتے ہیں وہی ہاتھ ظلم اور تشدد کا نشانہ بن جائیں، تو کیا یہ انسانیت کے لیے لمحہ فکریہ نہیں؟ پاکستانی ہسپتالوں میں پیش آنے والے خوفناک واقعات، نرسوں اور ڈاکٹروں کی بے بسی اور معاشرتی بے حسی پر ایک ایسی کہانی جو آپ کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گی۔ یہ صرف متاثرین کی کہانی نہیں بلکہ اس نظام کی حقیقت بھی ہے جو ظلم کے خلاف خاموش تماشائی بنا ہوا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ یہ آپ کے لیے بالکل فری ہے لیکن اس سے ہماری بہت ہیلپ ہوتی ہے۔ ارونا شنباگ کنگ ایڈورڈ کالج ممبئی میں بطور نرس اپنے فرائض سر انجام دے رہی تھی جب ان پر حملہ ہوا۔ سوہن لال والمیکی نامی حملہ آور اسی ہسپتال میں کام کرنے والا ایک وارڈ اٹینڈنٹ تھا۔ ارونا کا ریپ کیا گیا اور پھر انہیں کتے کے گلے میں ڈالنے والے پٹے کی مدد سے گلا گھونٹ کر قتل کرنے کی کوشش کی گئی۔ قتل کی اس کوشش کے دوران ارونا کے دماغ کو آکسیجن کی فراہمی منقطع ہو گئی۔ اس حملے میں اگرچہ ان کی جان تو بچ گئی مگر 26 سالہ ارونا اگلی 4 دہائیوں تک اسی ہسپتال میں کوما کی حالت میں زندہ رہیں، اور سوہن لال والمیکی نامی حملہ آور کو قتل اور ڈکیتی کے الزامات ثابت ہونے پر 7 سال قید کی سزا ہوئی، لیکن ریپ کے الزامات کو چارج شیٹ سے خارج کر دیا گیا۔ اور انڈین نیوز پیپر کے مطابق جیل سے رہائی کے بعد سوہن لال کو اسی شہر کے ایک سرکاری ہسپتال میں دوبارہ نوکری بھی مل گئی۔ دوسری طرف اس ہولناک واقعے کے 42 سال بعد یعنی 2015 میں ارونا کوما کی حالت میں اسی ہسپتال میں وفات پا گئیں جہاں ان کا ریپ ہوا تھا۔ یہ انڈیا میں میڈیکل اسٹاف کی ایک خاتون کا پہلا ایسا ریپ تھا جو بڑے پیمانے پر میڈیا میں رپورٹ ہوا۔ تب سے آج تک حالات خراب ہی ہوئے ہیں اور ہسپتالوں میں میڈیکل اسٹاف پر تشدد اور خاص طور پر خواتین کے خلاف سیکچول وائلنس اور ہراسمنٹ کے واقعات بڑھ رہے ہیں۔ حال ہی میں انڈیا کے شہر کولکتہ میں ایک زیر تربیت ڈاکٹر کے ریپ اور ہولناک تشدد کے بعد پاکستان میں بھی یہ بحث چھڑی ہے کہ یہاں میڈیکل اسٹاف کو کیا مشکلات درپیش ہیں۔ اس بارے میں پاکستان بھر میں درجن بھر ڈاکٹروں اور نرسز سے بات کی گئی ہے۔ ان وومن ڈاکٹر اور نرسز کا کہنا ہے کہ پاکستان میں وومن میڈیکل ورکرز کی ایک بڑی تعداد کو پیشنٹس اور ان کی فیملیز کی جانب سے جسمانی اور زبانی تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ زیادہ تر گورنمنٹ ہاسپٹلز میں سیکیورٹی کا نظام انتہائی خراب ہے اور اکاؤنٹیبلٹی پروسیس سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ لیکن وومن میڈیکل ورکرز کا دعویٰ ہے کہ جو چیز ان کے لیے زیادہ پریشان کن ہے وہ ہاسپٹل میں ہی موجود اپنے دیگر ساتھیوں کی جانب سے ان کی سیکچول ہیراسمنٹ اور ایبیوز ہے۔ ایک تحقیق سے یہ خطرناک رجحان سامنے آیا ہے جس کے مطابق ہاسپٹل میں ہیراسمنٹ کے واقعات ایک ایسا کلچر کا حصہ بن گئے ہیں جہاں شرم، خوف اور خاموشی کی وجہ سے ان واقعات کا سلسلہ بغیر کسی روک تھام کے جاری رہتا ہے۔ متعدد ڈاکٹروں اور نرسوں نے BBC کے ساتھ اپنے تلخ تجربات شیئر کیے ہیں جن میں انہوں نے ان حملوں اور بدسلوکیوں کا ذکر کیا جو انہیں یا ان کی ساتھی خواتین کو خاص طور پر گورنمنٹ ہاسپٹل میں پیش آئیں۔ یہ واقعات اکثر ان کے کام کے دوران پیش آتے ہیں اور وکٹمز کے مطابق اس ماحول میں خاموش رہنے کا دباؤ انہیں مزید پریشان کرتا ہے۔ نرسز کے لیے آپریشن تھیٹر ان جگہوں میں شامل ہے جو سب سے زیادہ خطرناک سمجھی جاتی ہیں۔ اس حساس ماحول میں جونیئر نرسز کو سینئر ڈاکٹر اور زیر تربیت ڈاکٹروں کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے۔ ان کا کام آپریشن کے دوران مختلف میڈیکل اکوپمنٹ فراہم کرنا ہوتا ہے۔ یہ ایک انتہائی ذمہ داری کا کام ہے جو پہلے ہی ان پر ذہنی دباؤ ڈالتا ہے کیونکہ انہیں ہر لمحہ چوکس رہنا پڑتا ہے تاکہ کسی بھی قسم کی غلطی نہ ہو۔ اس کے باوجود بعض سینئر ڈاکٹرز اور عملے کے غیر اخلاقی رویے ان کے لیے حالات کو مزید خراب کر دیتے ہیں۔ نرسز کے مطابق آپریشن کے دوران کچھ ڈاکٹرز جان بوجھ کر انہیں غیر مناسب طریقے سے چھونے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کے لیے نہایت خوفناک اور پریشان کن تجربہ ہوتا ہے۔ یہ عملہ ان کی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں اور وقار کے خلاف ہے اور انہیں سخت ذہنی اذیت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ان کے پاس فوری طور پر اس رویے کو روکنے کے مؤثر ذرائع موجود نہیں ہوتے اور اکثر ان کی شکایت کو بھی سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا۔ اس صورتحال میں وہ خود کو بے بس محسوس کرتی ہیں جس سے ان کے کام کرنے کا ماحول مزید ناقابل برداشت بن جاتا ہے۔ کراچی کے ایک نجی ہسپتال کی ایک خاتون نے سول سروسز ہسپتال کے اینٹی ریپ سینٹر میں رپورٹ درج کروائی کہ 10 دن پہلے ایک نجی ہسپتال میں آپریشن کے دوران ایک سرجن نے ان کا ریپ کیا۔ ان کا میڈیکل چیک اپ ہوا اور رپورٹس تیار کی گئیں، لیکن سماجی دباؤ اور دیگر وجوہات کی بنا پر انہوں نے مزید آگے نہ بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ متاثرین کو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے میں کتنی مشکلات پیش آتی ہیں۔
इसी तरह एक नर्स जो इस्लामाबाद में ट्रेनिंग पर थी बताती हैं कि इन्हें ऑपरेशन थिएटर में एक डॉक्टर की सेक्सुअल हैरेसमेंट की वजह से अपनी ट्रेनिंग छोड़नी पड़ी। उनके मुताबिक डॉक्टर इन्हें बार बार नामुनासिब अंदाज में छूने की कोशिश करते, इनका हाथ पकड़ लेते और गैर अखलाकी रवैये इख्तियार करते। नर्स ने कहा कि वो सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त करती नहीं क्योंकि इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इनके वालिद के इंतकाल के बाद वो स्कॉलरशिप पर तालीम हासिल कर रही थी और किसी पर भरोसा नहीं कर सकती थी। हैरेसमेंट से तंग आकर उन्होंने नर्सिंग ट्रेनिंग छोड़ दी। एक और नर्स ने बताया कि नर्सेस को न सिर्फ अमले बल्कि पेशेंट के रिलेटिव की तरफ से भी हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। शिकायत करने पर कोई तवज्जो नहीं देता, खासतौर पर जूनियर नर्सेस की। अगर कोई जूनियर नर्स सीनियर डॉक्टर के खिलाफ शिकायत करे तो तहकीकात किए बगैर नर्स पर ही इल्ज़ाम लगा दिया जाता है और कहा जाता है कि सीनियर डॉक्टर पर झूठा इल्ज़ाम लगाने की हिम्मत कैसे हुई। अमेरिकी इदारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने अपनी रिपोर्ट्स में निजी सतह पर किए गए सर्वेस का डेटा शाया किया है। इनकी रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान की मेडिकल फील्ड में 95% वुमेन वर्कर को ज़बानी बदसलूकी और बाज़ औक़ात फिजिकल वायलेंस का सामना करना पड़ता है। 59% फीमेल नर्सिस ने काम की जगह पर हैरेसमेंट के वाक़यात को रिपोर्ट किया, जबकि 29% को सेक्सुअल हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा है। जर्नल ऑफ मेडिसिन की एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 30% फीमेल डॉक्टरों को किसी न किसी सूरत में सेक्सुअल हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 24 करोड़ से ज़्यादा की आबादी वाले मुल्क पाकिस्तान में सिर्फ 2,99,000 डॉक्टर हैं, जिनमें फ़ीमेल की तादाद निस्फ से भी कम है, जबकि नर्सों की तादाद 1,27,000 है। डॉक्टर सुमैया सैयद, चीफ पुलिस सर्जन कराची, बताती हैं एक सरकारी अस्पताल के एक डॉक्टर ने एक नर्स को वरगलाकर और झांसा देकर अपने हॉस्पिटल में बुलाया जहां वो ठहरे हुए थे, लेकिन वो वहां तन्हा नहीं थे बल्कि इनके साथ इनके 2 दोस्त डॉक्टर भी मौजूद थे। इस लड़की ने वहां छत से छलांग लगा दी और फिर वो कोमा में चली गई। इस नौजवान नर्स का रेप किया गया था। इसमें कुछ भी रजामंदी से नहीं हुआ था, मगर इस लड़की ने फैसला किया कि वो इस मामले को रिपोर्ट नहीं करेगी। वो कहती हैं कि वो नर्स आज कहाँ है मुझे नहीं पता। इसने ये जॉब छोड़ दी और चली गई। केस चलाती तो इस पर ही इल्ज़ाम लगता कि वो थी ही ऐसी, आखिर किस किस से लड़ती, इसलिए जॉब छोड़कर चली गई। एक और गवर्नमेंट हॉस्पिटल की डॉक्टर को कई हफ्ते तक ब्लैकमेल किया जाता रहा। इन्हें ब्लैकमेल करने वाला शख्स भी एक डॉक्टर ही था, जिन्होंने अस्पताल के वॉशरूम में लगे रोशनदान से इनकी वीडियो बना ली थी। लेडी डॉक्टर ने इसी अस्पताल की 12 सीनियर खवातीन डॉक्टर की मदद हासिल की, जिन्होंने पुलिस से रब्ता किया और इस मामले को हल करवाने की कोशिश की। लेडी डॉक्टर नहीं चाहती थी कि ये मामला लोगों या इनकी फैमिली तक पहुंचे। पंजाब के एक गवर्नमेंट अस्पताल की एक फीमेल डॉक्टर ने बताया कि अस्पतालों में ऐसी कोई बाज़ाब्ता कमेटियां मौजूद नहीं जहां फीमेल मेडिकल स्टाफ मुकम्मल एतमाद के साथ अपनी शिकायत पहुंचा सकें। जो कमेटी बनती है इसमें या तो वही डॉक्टर्स मौजूद होते हैं जो हरासानी के वाक़यात में मुलव्विस होते हैं, या इनके दोस्त अहबाब इन कमेटियों का हिस्सा होते हैं। डॉक्टर और नर्सिस ने इस शर्त पर कि इनकी आइडेंटिटी को रिवील न किया जाए हैरेसमेंट के वाक़यात शेयर किए हैं। एक और डॉक्टर ने बताया 8 साल कबल जब वो एक गवर्नमेंट अस्पताल में बतौर रेजिडेंट ऑफिसर काम कर रही थी, पेशेंट से भरे वार्ड का इंतजाम चलाने से भी बड़ा दबाव वो नजरें थीं जो मुसलसल इनका जायजा ले रही होती थी। वो बताती हैं कि वो शख्स मेरा सीनियर डॉक्टर था और इसका बैकग्राउंड खासा मजबूत था। वो मुझसे बिला वजह फ्रैंक होने की कोशिश करता। मैं वार्ड में मरीज चेक कर रही होती तो मेरे साथ चिपक कर खड़ा होने की कोशिश करता, मायने खेज जुमले कसता और किसी न किसी तरह छूने की कोशिश करता। सबसे मुश्किल वक्त मेरी रात की शिफ्ट होती थी। इन फीमेल डॉक्टर ने इस रवैये से तंग आकर अस्पताल इंतजामिया को इन डॉक्टर के रवैये की शिकायत लगाई और उनके मुताबिक इन्हें कुछ इन अल्फाज में जवाब दिया गया। मुझे कहा गया कि तुम्हें यहाँ आए हुए जुम्मा 8 दिन हुए हैं और इस बात का क्या सबूत है तुम्हारे पास? हम इस शख्स को 7 साल में ठीक नहीं कर पाए। तुम्हारी शिकायत से कुछ नहीं बदलेगा और तुम्हारी बात पर कोई यकीन भी नहीं करेगा। वो बताती हैं कि जब फीमेल मेडिकल वर्कर्स हरासा किए जाने के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करती हैं तो उनकी हौसला शिकनी की जाती है और कहा जाता कि सबूत भी लेकर आएं। और अक्सर डॉक्टर्स और नर्सिस ने वीडियो बनाकर भी वाकयात रिपोर्ट किए, मगर कुछ नहीं हुआ। ऐसे हरासा करने वाले डॉक्टर को 2-3 महीनों के लिए किसी और वार्ड में भेज दिया जाता था और फिर वो वापस आ जाता। एक तरफ अस्पताल और सेहत के मराकज में साथी मेडिकल स्टाफ की जानिब से हैरेसमेंट जैसे वाकयात का खौफ रहता है, तो दूसरी जानिब इन डॉक्टर्स और नर्सिस को अस्पताल में आने वाले पेशेंट के रिलेटिव्स के हमलों का भी डर होता है। BBC से बात करते हुए कम से कम 3 फीमेल डॉक्टर्स ने खुद पर होने वाले हमलों से मुतालिक बताया कि हमला करने वाले पेशेंट या इनके रिलेटिव्स नहीं बल्कि आम शहरी थे जो नशे की हालत में अस्पताल में दाखिल हो गए। इन अस्पताल में सिक्योरिटी का खातिर ख्वाह इंतजाम नहीं होता
और कोई भी शहरी अस्पताल में दाखिल हो सकता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हालात बदतर हैं। डॉक्टर सुमैया सैयद कहती हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो इन अस्पतालों में काम करने वाला मेडिकल स्टाफ, चाहे वो मेल हो या फीमेल, सभी को पब्लिक प्रॉपर्टी ही समझा जाता है। वो मजीद बताती हैं कि ऐसे वाकयात आम हैं कि जब शराब पीने के बाद शहरी अस्पतालों में फीमेल स्टाफ को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। लाहौर के एक निजी अस्पताल में बतौर डेंटिस्ट काम करने वाली एक डॉक्टर ने भी ऐसा ही एक वाकया शेयर किया। मेरे रूम में एक शख्स आया जो शराब के नशे में धुत था। इसने कहा मैं इसके दांत चेक करूं। मुझे महसूस हुआ कि कुछ गलत है, मगर मरीज तो मरीज होता है और बतौर डॉक्टर हम किसी मरीज के चेकअप से इनकार नहीं कर सकते। मैंने इन्हें बैठने का कहा, मगर इस शख्स ने मेरे ऊपर गिरने की कोशिश की। मेरे शौहर भी इसी रूम में मौजूद थे और उन्होंने इस शख्स को देख लिया और वो और दीगर अमला भागते हुए आए और इस आदमी को अस्पताल से निकाल दिया। मैं आज तक ये वाकया भूल नहीं पाई। पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे 2023 के मुताबिक मुल्क में गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तादाद सिर्फ 1284 है, लेकिन यहाँ सिक्योरिटी के इंतजामात इंतहाई नाकिस हैं और ज्यादातर हॉस्पिटल्स में CCTV कैमरे मौजूद नहीं, या कम हैं या काम ही नहीं करते। इन तमाम हॉस्पिटल में हर रोज हजारों पेशेंट और इनकी फैमिलीज आती हैं और अब मेडिकल स्टाफ पर हमले एक आम सी बात है। दूसरी जानिब डॉक्टर्स ने अपनी ड्यूटी के सख्त औकातकार तवील शिफ्टों और इन शिफ्टों के दौरान किसी किस्म की सहूलियत का मैसर ना होना, यहाँ तक कि डॉक्टर्स के आराम के लिए कमरे मौजूद नहीं होते। अस्पतालों में खास तौर पर कॉरिडोर, हॉल और एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक जाने वाले रास्तों में रोशनी का मुनासिब इंतजाम नहीं होता। उनके मुताबिक कई गवर्नमेंट अस्पतालों के वार्ड्स में फीमेल डॉक्टर्स के लिए वॉशरूम्स तक नहीं होते। अगर हों तो उनके लॉक्स ठीक नहीं होंगे या वो दूसरे ब्लॉक्स और वार्ड्स में होंगे जहां जाना इनके लिए मुमकिन नहीं होता। एलिजाबेथ थॉमस कहती हैं कि इस वाकये के बाद वो सोने में मुश्किल महसूस करती हैं। मेरी 7 साल की बेटी है और वो अक्सर कहती है कि मैं डॉक्टर बनूंगी, मगर मैं ये सोचती हूँ कि क्या इस मुल्क में डॉक्टर महफूज हैं। पाकिस्तान और दीगर ममालिक के मेडिकल सेंटर्स में सेक्सुअल हैरेसमेंट, फिजिकल वायलेंस और अनसेफ एनवायरनमेंट के मसाइल न सिर्फ फीमेल मेडिकल स्टाफ के लिए खतरा हैं, बल्कि पूरी सेहत आमा की सर्विसेज के लिए एक चैलेंज है। ये मुजालिम इन फिजिशियंस पर किए जा रहे हैं जिन्हें मसीहा कहा जाता है, जो दूसरों की जानें बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। ये मसला निज़ाम की खामियों और इसके अदम तहफ़्फ़ुज़ को जाहिर करता है, जहाँ मुतासरा अफराद की आवाज़ को अक्सर दबाया जाता है या नज़रअंदाज किया जाता है। ज़रूरत इस अम्र की है कि अस्पतालों और मेडिकल सेंटर्स में सिक्योरिटी के इंतजामात को बेहतर बनाया जाए, शिकायत के मौसर निज़ाम को मुतारफ करवाया जाए और हैरेसमेंट के वाक़यात में मुलव्विस अफराद को सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़े। इसके साथ साथ मुआशरती रवैयों में तब्दीली लाना, फीमेल मेडिकल स्टाफ के लिए एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ का फ़रोग़ और एक महफूज माहौल फराहम करना वक्त की अहम ज़रूरत है। ये मसला सिर्फ फीमेल डॉक्टर या नर्सिस का नहीं, बल्कि पूरे मुआशरे की जिम्मेदारी है। ये वो लम्हा है जब हमें सोचना होगा कि अगर अपने मुहाफिज और मसीहा ही महफूज नहीं है तो हम किस मुआशरे में जी रहे हैं। ये वक्त है कि हम आवाज़ उठाएं और इंसानियत को इन तारीक सायों से निजात दिलाएं, क्योंकि सिर्फ एक महफूज और मजबूत निज़ाम ही इन हाथों को वो इज्जत दे सकता है जो दूसरों के जख्मों पर मरहम रखते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट में अपनी राय का इजहार करें।